Good morning, students. So again we will start with accounting equation. You all know that accounting equation starts with assets equals to liabilities plus capital. So for assets you can write A, L for liabilities and C for capital. So accounting equation signifies that all the assets are equals to liabilities plus capital. You all know that assets are the property, liabilities are the monetary responsibilities, and capital is the amount with which you are going to start your business. So today I have taken NCERT problems, and the problem number 1 is Harsha started business with cash of 2 lakh rupees. So in this Harsha has started business. So business में क्या आ रहा है, business में पैसा आ रहा है. So cash is your asset. So you will write cash under your assets equals to liability plus capital. बिजनेस से पैसा आ रहा है तो आप कैश का नाम लिखेंगे, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़. सो यू विल राइट 2 lakh rupees and liabilities 0, no liabilities there, and again capital is your 2 lakh rupees because you are going started your business with cash of 2 lakh rupees. So in this way you can tally your equation. 2 lakh equals 2 lakh, your equation balances. It means you have done the transaction in the very correct manner. Let's move towards the second transaction. In the second transaction Harsha is purchasing some goods from Naman ऑफ ₹40,000. 40,000 के गुड्स हर्षा खरीद रहा है. इसका मतलब 40,000 रुपया बिजनेस में से जा रहा है. सो बिफोर मूव टूवर्ड सेकेंड ट्रांजेक्शन यू विल राइट डाउन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज़ कैश. बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं. सो इन एसेट्स यू विल राइट गुड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक. आप गुड्स नहीं लिखेंगे, आप स्टॉक लिखेंगे. सो यू विल राइट स्टॉक इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. आप गुड्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो रहेगी. गुड्स आपके पास कैश इससे पहले 2 लाख रुपये था, क्योंकि आपने 40,000 का स्टॉक खरीद लिया है तो आप 40,000 इसमें से माइनस कर देंगे. यू विल डिडक्ट 40,000 रुपीज़ एज यू हैव परचेज सम स्टॉक. सो स्टॉक इज़ अगेन योर 40,000 रुपीज़. नो लाइबिलिटी, कैपिटल इज़ 2 लाख रुपीज़ जैसे पहले थी कैपिटल वही आपने नीचे लिख दी. नो चेंज इन दैट. So just solve this bracket. You will get 1,60,000 rupees plus 40,000 rupees equals to 0 plus 2 lakh. When you will solve this equation, it becomes 2 lakh and this is also 2 lakh. So again your equation balances. Let's move towards the third transaction. In third transaction is in your third transaction Harsha is purchasing some furniture. He is purchasing furniture but on credit. This time he is getting furniture on credit. In your third transaction Harsha is selling goods to Bhanu. Harsha is selling goods to Bhanu for rupees 12,000. See, there are two amounts, 10,000 and 12,000. The goods were costing rupees 10,000 and he was selling those goods for rupees 12,000. इसका मतलब वो 10,000 की जो goods हैं उनको 12,000 में बेच रहा है. It means he is getting some profit of 2,000 rupees. So how you will solve this equation? Let's solve it. But before this you will write the second equation. Cash plus stock equals to, थोड़ी जगह छोड़ के, C. हर्षा जो गुड्स बेच रहा है उधार में बेच रहा है. इट मीन्स उधार में जब भी हम सामान बेचते हैं वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं. जिसको भी हमने सामान उधार में बेचा वो हमारे कस्टमर होंगे. सो द कस्टमर्स आर नोन एज डेटर्स. सो यू विल राइट डेटर्स हेयर. अंडर एसेट्स यू विल ऐड डेटर्स एज न्यू हेड. आपका एक नया हेड बन जाएगा जिनका नाम क्या होगा, डेटर्स. इन अकाउंटेंसी यू विल नॉट राइट कस्टमर्स आर द डेटर्स. एक्चुअल द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव टू रिसीव सम मनी. आपको कुछ पैसे उनसे मिलने हैं, इसलिए वो आपके लिए एसेट बन जाते हैं. सो यू विल राइट योर कैश एज 1,60,000 रुपीज़. क्योंकि आपको यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए यू विल नॉट ऐड और सबट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम कैश. यू विल राइट 1,60,000. आपका जो स्टॉक था वो 40,000 रुपये था, पहले 40,000 था, क्योंकि आपने 10,000 का स्टॉक बेच दिया. सो यू विल डिडक्ट 10,000 रुपीज़ फ्रॉम दिस स्टॉक.
प्लस आपको कस्टमर से कितने पैसे मिलने हैं 12,000, तो आप यहाँ 12,000 लिखेंगे डेटर्स के नीचे। आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, सो यू विल ऐड ज़ीरो, यू विल राइट ज़ीरो। कैपिटल आपका इससे पहले 2 लाख रुपए था, तो आप अब भी 2 लाख रुपए ही लिखेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में आपको 2,000 का फ़ायदा हो रहा है। सो रिमेंबर, इन अकाउंटिंग इक्वेशन यू विल ऐड ऑल द प्रॉफिट्स टू कैपिटल एंड यू विल डिडक्ट ऑल द लॉसेस फ्रॉम कैपिटल। आपको 2,000 का बेनिफिट हो रहा है, आप कैपिटल में वो 2,000 ऐड करेंगे। सो सॉल्व दिस ब्रैकेट, यू विल गेट 1,60,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 12,000 from debtors, no liability, plus 2,02,000 is your capital. Now let's move towards the last transaction, and in that transaction Harsha is purchasing furniture for 7,000 rupees but on credit। वो उधार में सामान खरीद रहा है बट एसेट तो है। So before that you will write the third transaction, cash, stock, debtors and one more एसेट दैट इज़ फर्नीचर। क्योंकि वो उधार में ये फर्नीचर खरीद रहा है, तो एक लाइबिलिटी बन गई जिसका नाम क्या होगा, क्रेडिटर। हम जिससे भी उधार में सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, प्लस योर कैपिटल। नो कैश इज़ योर 1,60,000, जैसा था वैसा का वैसा ही। स्टॉक 30,000 था, नो चेंजेस इन दैट। डेटर्स 12,000 थे, अभी भी 12,000 ही है। फर्नीचर हमने ख़रीदा 7,000 का, तो सो यू विल ऐड 7,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स, आपने जितने पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स को 7,000 देने हैं, वो क्रेडिटर्स में लिखेंगे। कैपिटल आपका जैसे था, नो चेंजेस इन दैट। सो व्हेन यू विल टू मेक द टोटल ऑफ दिस, इट विल इक्वल्स टू 2,09,000 रुपीज़। So in this way your equation balances. So I hope this question is quite clear to all of you. Thank you.